effectiveness of a heat exchanger. Why effectiveness is required? And before going to the definition of effectiveness, let us consider a situation. I have a parallel flow heat exchanger. Parallel flow heat exchanger, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, समझते रहना. Suppose that when area is 0, A is 0, and here I have TH in, here I have TC in. What do you think? In a heat exchanger, in a parallel flow heat exchanger, suppose I have very large area, very large, infinite, मतलब एरिया की कोई कमी नहीं है मेरे पास. कहने का मतलब वेरी लार्ज कितना, आई डोंट नो, इन्फानाइट एरिया भी नहीं बोल सकते, बट मेरे पास एरिया की कोई कमी नहीं है, जितना एरिया चाहिए होगा मिल जाएगा. वेरी लार्ज एरिया, राइट? सो इफ आई हैव वेरी लार्ज एरिया, व्हाट डू यू थिंक? अब मैं इसलिए एरिया को यहाँ पे फिनिश नहीं कर रहा. दिस लाइन गोज अप टू whatever area is required. What do you think? That hot fluid temperature is going to decrease. You know that it is going to decrease. Cold fluid temperature is going to increase. You know this. Limiting case क्या हो सकता है? मतलब मैं आपको previous lectures में बोल रहा था कि many of you think that sir, is it possible that hot fluid temperature is going to cross the cold fluid temperature? Hot fluid will be below the cold fluid. Is it possible? It's not possible, obviously. But suppose if I provide the no limitation to the amount of area, suppose I have this symbol means कि इसकी length इतनी नहीं है, there is a infinite length of heat exchanger, area of heat exchanger is available. What do you think? See, what happens that if area is infinite, in the limiting case, what can be done is the temperature of these two streams is going to be equal. इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. आप बोलोगे कि क्या सर ये क्रॉस करके इधर चला जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम इन द लिमिटिंग केस इन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, इन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, दिस इज द मैक्सिमम लिमिटिंग सिचुएशन, राइट? मतलब अगर आप बोलो कि एक पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में हॉट इनलेट स्ट्रीम, इनलेट हॉट स्ट्रीम को कहां तक कूल किया जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक कूल किया जा सकता है, दैट इज इट इज पॉसिबल to cool the parallel flow heat exchanger, right? To cool the hot stream in a parallel flow heat exchanger to the exit temperature of the cold stream. मतलब hot का exit और cold का जो exit है दोनों बराबर हो सकता है. ये possible है, लेकिन of course physically हम लोग realize नहीं कर पाते because it is very large area is required, and of course other assumptions are also not valid. There are heat losses, तो physically realize नहीं कर पाते, पर theoretically this is possible, right? That in case of infinite area, this is the maximum possible heat transfer in a parallel flow heat exchanger. इससे ज्यादा heat transfer हो सकता है क्या? नहीं. Now this one is TC out and also it is TH out. That is the limiting case. If area infinite लिख दे रहा हूं, but समझ लेना infinite area का कोई मतलब नहीं होता, but still infinite area is available, then the hot stream, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि hot stream can be cooled to the exit temperature of the cold stream, or cold stream can be heated to the exit temperature of the hot stream. Hot stream can be cooled to the exit temperature of cold stream. Exit temperature of cold stream, ठीक है? Exit temperature of cold stream. ये बात समझ आई? एक पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में इससे ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता. अब आप मुझसे पूछो सर कितना हीट ट्रांसफर हुआ है? व्हाट डू थिंक? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड इन दिस केस? दैट इज Q इज इक्वल टू, अगर मैं पूछूं कि भाई सपोज MH CPH TH in minus TC in, TH in minus TH out. That is the actual amount of heat transfer. TH out is also equal to TC out, so you can also write TC out here if infinite area is available. Also, MC CPC into TC out minus TC, that is also possible. This is the actual amount of heat transfer. TC out, which is also equal to TH out minus TC. तो कल को गेट में क्वेश्चन आ गया और TC out की जगह TH out लिख दिया चलेगा, but only in this case, only in the limiting case. कि एक पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में इससे ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होगा. तो ग्राफिकली मैंने आपको समझाया कि जब
maximum possible heat transfer will occur in a parallel flow heat exchanger, this is the situation. अब आपसे मैं इसमें क्वेश्चन पूछता हूं, is it possible I'm sorry, is it possible that in a parallel flow heat exchanger the cold stream can be heated to hot stream inlet temperature? क्या ये पॉसिबल है? देखो, what is the question? Is it possible, अभी पैरेलल की बात कर रहा है, is it possible to heat the cold stream, heat the cold stream up to the inlet temperature, up to inlet temperature of hot stream? बताओ, it's like a question. Inlet temperature of hot stream, क्या ये पॉसिबल है कि इसका एग्जिट इसके इनलेट के बराबर हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल. व्हाई? भाई देखो, जरा सा भी हीट ट्रांसफर होगा तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा, राइट? अब देखो, ये जैसे नीचे आप कितने भी जल्दी इनको मिला दो, कहीं भी मिला दो, यहां मिला दो, ये कर दो, इन दैट केस ऑल्सो कुछ भी एनीथिंग कर लो, इट कैन नेवर रीच टू TH in parallel flow arrangement. So it is never possible. Never. Always this outlet temperature will be less than TH. Right? अच्छा, आपसे मैं ये पूछूं again, is it possible to cool the hot stream up to मैं इसको कूल करते करते इतना ले आऊं कि ये यहां तक कूल हो जाए, अप टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रीम? पॉसिबल है क्या? अगेन द आंसर इज नो. ऑफ कोल्ड स्ट्रीम द आंसर इज नो. करेक्ट, दैट इज द सिचुएशन. इससे ज्यादा नहीं हो सकता है कुछ. हाँ, यू मे आस्क कि सर भाई ऑब्वियस सी चीज है, देखो अगर दोनों में चेंज हो रहा है टेम्परेचर, हाँ, देयर कैन बी अ सिचुएशन दैट सपोज इवापोरेटर और कंडेंसर. इन इवापोरेटर और कंडेंसर it is possible that in evaporators the liquid is evaporating and the hot temperature is decreasing. It is possible कि आपका जो hot का temperature वो डिक्रीज करते करते evaporator वो liquid के temperature के बराबर आ जाए, right? In that case it is possible. वो situations नहीं पूछते, we are assuming that the temperature of both the liquids are changing, right? In that case I am asking this question. तो कुछ अगर सीखते हो तो साथ में बाकी attachment वाली चीजें भी सीखा करो कि यहाँ पे I am assuming that the temperature of both the liquids are changing. ठीक है? Okay. So always this exit temperature, अगर मान लो infinite area भी दे दिया, always this exit temperature will lie between these two. तो hot liquid को cold liquid के inlet के बराबर में cool नहीं कर सकता और cold liquid को hot liquid के inlet के बराबर में heat नहीं कर सकता. That is the situation of parallel flow heat exchanger. In a counter flow heat exchanger, suppose I have infinite area. Similar situation assume करते हैं, counter flow heat exchanger. Let's say I have infinite area. What is going to happen in this case? Normally आपने देखा, normally whatever be the normal situation, मैंने पहले graphs बनाए, right? Suppose infinite area is there. There can be two situations. जो मैं आपसे यहाँ पूछ रहा था ना, यहाँ पे आपसे मैंने क्या पूछा? Is it possible to heat the cold stream to hot liquid inlet temperature? Is it possible to cool the hot stream to the cold liquid inlet temperature? This was not possible in this parallel flow configuration, right? So what was the maximum possible heat transfer? Right, that was this is the maximum possible heat transfer in this case. But if you take the counter flow heat exchanger arrangement, in this case, suppose if I have infinite area, in this case what can happen? This is THN. अगर आपने एरिया की कोई कमी नहीं दी तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है that the hot liquid will leave at a temperature TH out, right? And the cold liquid will enter like this, and in this case the cold liquid inlet temperature, ये नीचे से लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, it should not pass through minimum. इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं. Just a minute. Suppose this is the case, and in this case the cold liquid inlet temperature goes like this. Sorry.
आप यहां क्या देख रहे हो कि इन दिस केस सपोज दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, मैं थोड़ा सा गैप रखना चाहता था, बट इन दैट केस मुझे ऐसे मिनिमा बनाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो टीएच आउट इज इक्वल टू टीसी इन एंड देन दिस इज टीसी आउट. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने क्या देखा, देखो इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर यू कैन कूल द हॉट स्ट्रीम up to a temperature which is equal to cold stream inlet temperature. Is it possible to, okay, you can cool the hot stream up to a temperature equal to the temperature of the cold stream inlet. ठीक है, तो it is only possible in counter flow heat exchanger, right? It is only possible. It is never possible in parallel flow heat exchanger. This is possible in counter flow heat exchanger कि आपने hot stream को इतना cool कर दिया कि वो cold stream के inlet के बराबर हो गया. क्या इसके बाद भी cool किया जा सकता है क्या? No, that is not possible. एक चीज आप हमेशा देखना है हीट एक्सचेंजर, हॉट स्ट्रीम का टेम्परेचर कोल्ड स्ट्रीम से हमेशा ज्यादा ही रहेगा. वो उसमें कहीं देखो थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते. हॉट स्ट्रीम अगर इसके नीचे आ गई, इन दैट केस इट विल बी अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट. बट या इट इज पॉसिबल एटलीस्ट थ्योरेटिकली. यहां तो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है. अगर आपसे कोई ये बोल दे कि इन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इवन थ्योरेटिकली इज इट पॉसिबल to cool the hot stream up to a temperature equal to the inlet temperature of the cold stream? No, not even theoretically. Possible ही नहीं. Right? But in a counter flow heat exchanger, at least theoretically, it is possible that the hot stream can be cooled to this temperature and cold stream will be like this. Right? अब इसमें देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें what is the amount of heat transfer? This is the maximum possible heat transfer, right? That is TH in minus TH out, है ना. ये चेंज किस में आया बताओ? दिस चेंज वॉज देयर इन द हॉट फ्लूइड, राइट. कैन आई राइट दिस एज TH in minus TC in? देख रहा हो, TH in minus TC in, that is the change experienced by the hot fluid. एंड TH in, आप देखो एक हीट एक्सचेंजर में आपको मैक्सिमम डिफरेंस जो मिलेगा टेम्परेचर का, वो क्या मिलेगा? ऐसे ही नॉर्मली सोचो, एक हीट एक्सचेंजर में टेम्परेचर का मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है? आप ये मत देखो कि एट अ गिवन लोकेशन, जस्ट टेल मी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस इन अ हीट एक्सचेंजर. भाई मिनिमम वैल्यू टेम्परेचर की कितनी होती है? TC in, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? TH in. सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस? TH in minus TC in. हालांकि वो एक ही जगह नहीं होती, बट एक बात बताओ, TH in minus TC in, you can observe here that TH in minus TC in, this much of temperature change can be observed इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. यहां ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसका मतलब मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर होता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है हीट ट्रांसफर, वो कहां हो सकता है? काउंटर फ्लो में हो सकता है थ्योरेटिकली. इससे भी ज्यादा हो सकता है. अगर आपने इनफाइनाइट एरिया दिया तो काउंटर फ्लो में आप TH in को TC in के बराबर कूल कर सकते हो, उससे नीचे तो जा नहीं सकते. सो दिस इज द while in this case TH in minus TH out, this TH out was not equal to TC in. So definitely ये TH out जो होगा, this will be more and this TH out will be less and therefore this product will be more. Correct? आप बोलोगे कि सर जरूरी है कि ऐसा हो? There is one more possibility is there that I hope it is visible. आप चाहे तो ये वाली लाइन हटा भी सकते. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द करेक्टनेस ऑफ द ग्राफ की कौन सा ज्यादा करेक्ट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हीट द कोल्ड स्ट्रीम अप टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट स्ट्रीम. मतलब यहां पे कुछ ऐसा होगा, दिस इज हॉट स्ट्रीम, राइट, दिस इज TH in, दिस इज TH out. मेरा जो कोल्ड स्ट्रीम है वो इतनी हीट हो जाए, इट्स नॉट लीनियर, आप लीनियर मत बना लेना हर बार, ठीक है, नॉट नेसेसरीली. दिस इज TC in and TC out. Now I can see here that I can heat the cold stream up to the inlet temperature of the hot stream. यहाँ possible नहीं है, graphically देख लो ना, possible नहीं, but here it is possible. One case, other case. In this case also, what is the temperature change observed? That is TH in. देखो TC out minus TC in and TC out is equal to TH in, so TH in minus TC in, same. But you may ask कि सर ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन. अच्छा एक बात बताओ, one more thing. In this case, which liquid is experiencing more temperature change?
Of course, this one, Th in minus Tc in, this one is experiencing more temperature change, and Tc out minus Tc in will be less. Of course, अब देखो ना, Th in minus Tc in is the maximum possible temperature difference in the heat exchanger. So, देखो ये केस कब होगा? अब देखो इसमें hot fluid is experiencing more temperature difference. ऐसा कब होगा? When MHCpH is less than MCCpC. तभी ऐसा होगा. Very very less जरूरी नहीं है, just less than MCCpC. When the heat capacity rate of the hot fluid is less than heat capacity rate of the cold fluid, and the infinite area is provided, and the heat exchanger is counterflow heat exchanger, in that case I can cool this hot liquid to the inlet temperature of the cold liquid. और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो मैक्सिमम, इस केस में जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो ही रहा है, क्योंकि आपने इनफाइनाइट एरिया दिया तो वैसे ही मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा. ठीक है, व्हाट इज दैट मैक्सिमम हीट ट्रांसफर? आप कैसे लिखोगे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर? Qmax इज इक्वल टू, आपको मैं इफेक्टिवनेस का भी बेसिस बना रहा हूं. ठीक है, Qmax इज इक्वल टू व्हाट? Th in minus Tc in. अब ये बताओ कि ये Th in minus Tc in जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? हॉट फ्लूइड के साथ हो रहा है या कोल्ड फ्लूइड के साथ हो रहा है? देखो इसमें हॉट फ्लूइड के साथ हो रहा है. ठीक है, सो MHCpH, ठीक है, Th in minus Tc in, correct? In this case, if I ask you, in this situation will be there. Cold fluid is experiencing a temperature change of Th in minus Tc in. तो ये सिचुएशन तब होगी जब कोल्ड फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट कम होगा एज कंपेयर टू द हॉट फ्लूइड हीट कैपेसिटी रेट. एंड इन दिस केस इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Qmax, यू विल से कि सर Qmax विल बी इक्वल टू MCCpC Th in minus Tc in. ये इसको अलग से लिख देते हैं, MCCpC Qmax is equal to MCCpC Th in minus Tc. अब आप इसमें एक सिमिलैरिटी देख रहे हो कि जो ये टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है. तो यहां पे मैंने आप क्या प्रूफ करना चाहता हूं कि देखो काउंटर फ्लो में इट इज पॉसिबल थ्योरेटिकली टू अचीव दिस टेम्परेचर डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द फ्लूइड्स. अब देखो ऑब्वियस सी चीज है, मैंने आपको जिसका एमसीपी कम होता है उसमें ज्यादा टेम्परेचर का चेंज आता है. तो एमसीपी अगर हॉट का कम होगा तो ये वाला जो चेंज है वो हॉट फ्लूइड में आएगा. इफ एमसीपी ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज लेस देन दिस मैक्सिमम चेंज विल बी टेकिंग प्लेस इन द कोल्ड फ्लूइड. यहां पे पैरेलल में जो मैक्सिमम चेंज आया था, दिस इज ऑल्सो Qmax एंड सॉरी दिस इज ऑल्सो Qmax. ठीक है, बट ऑब्वियसली ये जो Qmax होगा, दिस Qmax मस्ट बी लेस देन दिस Qmax, है ना. जो आप पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर ऑब्टेन करते हो, दैट मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर ऑब्टेन्ड इन द काउंटर फ्लो. और वैसे ही मैंने आपको बताया कि काउंटर फ्लो अरेंजमेंट में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा या एरिया कम लगेगा. तो इनफाइनाइट एरिया देने पर भी काउंटर फ्लो हीट में जो आपका हीट ट्रांसफर होगा काउंटर फ्लो अरेंजमेंट में वो ज्यादा होगा, राइट. अब यहां से इफेक्टिवनेस का बेसिस बनाते हैं. देखो आई टोल्ड यू दैट कि अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक हीट एक्सचेंजर में, forget about the arrangement, मैंने आपको दोनों केस बता दिए. Now the question is, in a heat exchanger, forget about the arrangement, what is the maximum possible heat transfer? बताओ क्या होगा? In a heat exchanger, what is the maximum possible heat transfer? What do you think? You'll say कि sir obviously ये तो नहीं होगा because it is less than that. तो ये होगा या तो ये होगा. अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा होगा? आप बोलोगे सर क्या ये दोनों बराबर होंगे? कैसे बराबर हो सकते हैं? MCCpC और MHCpH बराबर थोड़ी होता है. दे आर, है ना, इफ दे आर नॉट सेम हाउ द वैल्यूज विल बी सेम, बट आइदर Qmax विल बी दिस और Qmax विल बी दिस. ठीक है, अगेन लिसन टू माय क्वेश्चन दैट in a heat exchanger what is the maximum possible value of heat transfer? Okay, this is the maximum possible value. Now of course in reality your heat exchanger is never having infinite surface area, correct? If your heat exchanger is never having infinite surface area, the Q actual, this is Qmax, the Q actual will be always less than Qmax, and the ratio of Q actual to Qmax is called effectiveness. अब आप बोलोगे कि सर suppose I have a question कि सर for a parallel flow heat exchanger this is Qmax, for a counter flow heat exchanger one of these is Qmax. Suppose I want to calculate the effectiveness of a parallel flow heat exchanger, I should use this Qmax और दिस Qmax. मैक्सिमम तो एक ही होगा ना, वो ये. इवन फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर दिस Qmax इज यूज्ड, है ना. एक्चुअली ये बिना बताए भी मैं आपको फॉर्मूले से चीजें बता सकता था, राइट.
But then student asked me a question, sir, in parallel flow heat exchanger we can never achieve this temperature difference. Still, for finding the effectiveness of parallel flow heat exchanger, why we use in the denominator THn minus Tcn? The answer is, actually, for defining the effectiveness of any heat exchanger, we don't see whether it is parallel or counter. We just check that theoretically in a heat exchanger, कोई भी heat exchanger दुनिया में ले आओ, उसमें maximum possible heat transfer कितना हो सकता है, वो ये है. However, it can only be attained in counter flow, right? It can only be obtained in the counter flow arrangement. तो जब आप पैरेलल फ्लो की इफेक्टिवनेस भी निकालोगे तो वही मैक्सिमम को यूज करोगे. हाउएवर एक्चुअल तो देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है. नाउ लेट मी इरेज दिस. आई होप मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया यहाँ पे. आई ट्राइड कि इफेक्टिवनेस को मैं यहां से समझाऊं. अदरवाइज पहले मैं ये भी ट्राई कर चुका हूं कि इफेक्टिवनेस को डायरेक्ट, है ना, जस्ट बता दो कि फॉर्मूला कैसे लिखता है. अब देखो, इफेक्टिवनेस, जनरली क्वेश्चन कम आता है इफेक्टिवनेस पे. आप देखो एक्चुअली है क्या कि LMTD मेथड एंड इफेक्टिवनेस NTU मेथड, most of the problems on heat exchanger you'll be easily solving by using the LMTD method. मतलब उससे सारे सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सॉल्व होते, राइट. बट सम टाइम इफेक्टिवनेस ही पूछ ले या NTU ही पूछ ले, राइट, तो फिर क्या करोगे, राइट. सॉरी. ओके, सो या I was saying effectiveness डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से. एप्सिलॉन इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस. देखो फंडा समझो, अदरवाइज आप फॉर्मूले याद रखते जाओगे. फॉर्मूले याद भी रखने मैंने आपको बताया, कहीं कहीं मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसके लिए कोई तरीका नहीं है, इसको याद ही रखना है. बट जहां समझने के तरीके हैं उनको समझ के रखना है, सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. इफेक्टिवनेस मीन्स actual heat transferred by, एक्चुअली बुक्स में इतना ही लिखा रहता है, बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफर. अब वो ये नहीं बताते कि जब इफेक्टिवनेस मुझे पैरेलल फ्लो की निकालनी है तो भी जो मैं मैक्सिमम हीट ट्रांसफर लेता हूं वो किसी भी एक जनरल वर्ड है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर. वो ये नहीं मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इन पैरेलल फ्लो, नो, क्योंकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इन पैरेलल फ्लो वो तो हो ही नहीं सकता कभी. जो मैंने आपको काउंटर फ्लो में लिखवाया मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, वो पैरेलल फ्लो में तो कभी हो ही नहीं सकता. But still, for defining the effectiveness of a parallel flow, we take the same maximum heat transfer which I discussed in counter flow. So the thing is, maximum heat transfer, actual heat transfer by maximum heat transfer जो एक heat exchanger में हो सकता है, right? Now, first of all, let us talk about maximum heat transfer. Then I'll talk about the actual heat transfer. ठीक है? अब बताओ कि maximum heat transfer कितना हो सकता है किसी भी एक heat exchanger. मैं parallel की बात ही नहीं कर रहा या काउंटर की बात ही नहीं कर रहा. मैंने आपको क्या बताया कि हालांकि काउंटर के केस में वो अचीव किया जा सकता है, बट अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है तो आप बोलोगे सर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर जो मुझे ये टेम्परेचर डिफरेंस दिला दे, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस इन अ हीट एक्सचेंजर. एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस. इट विल बी अटेन्ड बाय दैट लिक्विड व्हिच इज हैविंग लेस हीट कैपेसिटी रेट. सो आइदर इट विल बी MHCpH into THn minus Tcn or THn minus Tcn, but if suppose MCCpC. अब द सेम, क्या इनके आंसर सेम आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं. हाँ भाई, अगर ये दोनों सेम है तभी सेम आएंगे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो Qmax इफ MHCpH. मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पे कौन सा यूज करना है जिसकी हीट कैपेसिटी रेट क्या हो, मिनिमम हो. इसलिए कई लोग यहाँ पे C मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है, या MCP मिनिमम लिख देता है. MHCpH is less than MCCpC, just less, not very less होने की जरूरत नहीं है. This is the value of Qmax if MCCpC is less than MHCpH. Now you'll say कि सर फिर कौन सा यूज करेंगे? भाई सबसे पहले प्रॉब्लम तो यहीं पर है मैक्सिमम हीट में. मैक्सिमम हीट को तो समझ जाए कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर या तो ये होगी या तो ये होगी. अगर हीट कैपेसिटी रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज लेस देन दिस इज द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर. इफ कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इज लेस देन दिस इज द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर. तो इसका मतलब बिफोर कैलकुलेटिंग इफेक्टिवनेस आपको ये देखना पड़ेगा कि हीट कैपेसिटी रेट किसका कम है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर राइटिंग the expression of effectiveness, writing the
expression of effectiveness. Before writing the expression of effectiveness, we'll have to check which fluid is having low heat capacity rate. ठीक है, किस फ्लूइड की हीट कैपेसिटी रेट कम है, क्योंकि उसके हिसाब से तो मैक्सिमम डिफाइन करोगे. तो एक काम करते हैं कि सपोज दैट कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम, ये वर्ड यूज कर लेते हैं. कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम मतलब दिस इज द सिचुएशन, कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम, करेक्ट. इफ कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम, इफ हॉट फ्लूइड इज मिनिमम. अगर कोल्ड फ्लूइड मिनिमम है तो क्यू मैक्स क्या आएगा, दिस इज इफेक्टिवनेस, राइट. क्यू मैक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, इफ कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम. देखो टेम्परेचर डिफरेंस तो यही है, TH in minus TC in, and cold fluid is minimum, so MC CPC. Epsilon is equal to this. अब एक काम करते हैं, एक्चुअल हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या होता है, कोई भी एक फ्लूइड पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, और उसमें टेम्परेचर चेंज ले लो और उसको उसके हीट कैपेसिटी रेट से मल्टीप्लाई कर दो. मीन्स MH CPH TH in minus TC in, TH in minus TH out, सॉरी TC in, भाई एक ही फ्लूइड का टेम्परेचर रखोगे और MC CPC दोनों सेम आंसर देंगे ना. क्या लगता है आपको, TC out माइनस TC in, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, बट ऑब्वियसली फिर हमने क्या सोचा कि ये काम करते हैं, इसको ये रख लेते हैं ताकि MC CPC ये दोनों कैंसिल हो जाए. तो इसलिए मैंने क्या किया कि ठीक है इसको नहीं यूज करूंगा, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, डजंट मैटर, बट फिर मुझे चीजें कैंसिल करनी थी, है ना. तो मैंने क्या किया कि ठीक है यहाँ पे एक काम करता हूँ, MC CPC और TC out माइनस TC in यूज कर लेता हूँ, है ना. और यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास जो बचेगा TC out माइनस TC in डिवाइडेड बाय TH in माइनस TC in इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस. लेकिन ये इफेक्टिवनेस तो तब आया है जब कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम, तो इस इफेक्टिवनेस को मैं कह दूंगा एप्सिलॉन C. ठीक है, इफ हॉट फ्लूइड इज मिनिमम, इफ हॉट फ्लूइड इज मिनिमम, देखिए if hot fluid is minimum, in that case okay, if hot fluid is minimum then effectiveness is equal to this divided by maximum. maximum कितना होता है, what is the temperature difference, TH in minus TC in, और क्योंकि hot fluid minimum है तो ये काम किसके साथ होगा, MH CPH. ठीक है, again actual will be MH CPH TH in minus TH out और MC CPC TC out minus TC in, but because MH CPH लिखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, so I will write this as MH CPH TH in minus TH out, and in this case this will be cancelled. ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा एप्सिलॉन H, क्योंकि ये एप्सिलॉन H तब आया है जब आप TH in minus TH out divided by TH in minus TC in. So epsilon H is defined, ठीक है, in this case and epsilon C in this case. अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब before solving the problem on effectiveness we have to first check that which fluid is minimum. Suppose कि cold fluid is minimum, right? एक बहुत confusion है स्टूडेंट्स के बीच में ये कि let's suppose that cold fluid is minimum. In that case क्या आप epsilon H लिख सकते हो, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है. If cold fluid is minimum, please don't define epsilon H. Epsilon C को ही डिफाइन करो. देखो दोनों एप्सिलॉन है, दोनों इफेक्टिवनेस है, राइट. तो कोल्ड फ्लूइड अगर मिनिमम है तो एप्सिलॉन C डिफाइन करो, अगर हॉट फ्लूइड मिनिमम है तो एप्सिलॉन H डिफाइन करो, दूसरा एप्सिलॉन डिफाइन ही मत करो, राइट. वहां नहीं तो आप गलती कर देते हो. अब प्रॉब्लम ये आई कि ठीक है, इफ दिस इज द सिचुएशन, एक यहां पे कंक्लूजन लिखवाता हूं आपको. देखो मैंने जो एप्सिलॉन डिफाइन करने के लिए लिखा Q by Q max, Q actual by Q max, है ना. ये Q max कहां से ले आया था मैं, दिस Q max which is this or this, can it be achieved theoretically in any of the heat exchanger? Yes. किसमें, काउंटर फ्लो में. It can be achieved. It means for counter flow heat exchanger effectiveness की maximum value कितनी हो सकती है, theoretically only, theoretically 1, right. But parallel flow में क्या कभी ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या कभी कि इतना टेम्परेचर डिफरेंस अचीव हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता, थ्योरेटिकली भी नहीं हो सकता. इसका मतलब पैरेलल फ्लो की इफेक्टिवनेस हमेशा 1 से कम रहेगी.
Simple conclusion, right? The effectiveness of, क्योंकि यार देखो ना, सीधी बात है, ये जो एप्सिलॉन डिफाइन करने के लिए जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर आई हैव यूज्ड, ये मैं फ्रॉम वेयर आई हैव ऑब्टेन्ड दिस मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इन काउंटर फ्लो ओनली। अब काउंटर फ्लो का मैक्सिमम चेंज यूज करके आप एप्सिलॉन को डिफाइन कर रहे हो, तो एप्सिलॉन काउंटर फ्लो का कितना हो जाएगा? 1। लेकिन हमेशा 1 नहीं रहेगा, अगर उसमें मैक्सिमम एरिया दिया है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा है तभी, है ना? ओके, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मैं लिख रहा हूं इज 1, कैन बी इक्वल टू 1, राइट? कब 1 होगा? व्हेन इनफाइनाइट एरिया इज देयर, व्हेन इनफाइनाइट एरिया मींस theoretically, infinite area means theoretical. But parallel flow heat exchanger, for a parallel flow heat exchanger, effectiveness can never become 1. Not even theoretically. Never become 1, not even theoretically. ठीक है? थ्योरेटिकली भी ये कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसमें कभी आ ही नहीं सकता उतना टेम्परेचर चेंज। जो टेम्परेचर चेंज लेके मैं इफेक्टिवनेस डिफाइन कर रहा हूं वो केवल काउंटर में ही आ सकता है, वो भी तब व्हेन एरिया इज प्रोवाइडेड, देयर इज नो लिमिट ऑन एरिया। तो ये एक यहां से इसके डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज चेक व्हेन यू आर सॉल्विंग इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम कि विच फ्लूइड इज मिनिमम, और मिनिमम फ्लूइड के हिसाब से फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। यू में आज की सर LMTD आप डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ा रहे हो, देखो डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है कि एरिया फाइंड करना, ठीक है? इन LMTD मेथड यू यूज्ड QA is equal to UA delta TL। आगे बढ़ते हैं आफ्टर द डिस्कशन ऑफ इफेक्टिवनेस, बिकॉज जब तक आप NTU नहीं समझेंगे, इसके बीच का रिलेशन नहीं समझेंगे, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट एक्सचेंजर एरिया विच इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट NTU and how we can find the area of a heat exchanger by the NTU method. Actually अब NTU method से solve करने के लिए questions आपको बहुत कम मिलेंगे, but इनके definitions पे questions आते हैं। And a particular type of question can be framed जो सिर्फ NTU method से ही solve हो सकता है। मैं उसका भी एक example ले लूंगा। उसको LMTD से solve किया जा सकता है, but that will include heat and trial kind of method. Okay. Otherwise most of the problems can be solved by LMTD method as well as NTU method. Okay, so if you remember, let us assume a case 1, parallel flow heat exchanger. One more assumption that if the cold fluid is minimum fluid, right? Cold fluid is the minimum fluid. Cold fluid is minimum means the heat capacity rate of cold fluid is less than the heat capacity rate of hot fluid. Okay, this is the situation given to us. Okay, right. Now in this situation, let us do you remember that we derived during the discussion of LMTD, I gave you a relation, मतलब एक ग्राफ हमने बनाया, तो ग्राफ के हिसाब से आपसे मैंने रिलेशन मांगा था। That was log of, it was TH, the top limit was for parallel flow, it was TH out, just a minute, TH out minus TC out divided by TH in minus TC in. I think this was the relation, right? And it was equal to minus U A. I'm just writing the expression after integral, आप मैच करके देख लेना, सेम इंटीग्रल आया था, ठीक है? And then it was equal to UA 1 by MH CPH plus 1 by MC CPC, यही आया था। मैं इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसकी डेरिवेशन हमारे लिए बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि पेपर में ना आने वाले। बट यस, वन थिंग दैट लाइक इन द 2020 पेपर the concept of differential equation was asked using the question related to the fin, right? Similarly, concept of some limit, concept of some other kind of mathematics which is used in these methods, वो कभी क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। अब अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप विद इन अ सेकंड्स आप बता दो अच्छा इसकी लिमिट तो ये आती है, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ NTU डेरिवेशन।
तो उस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अदरवाइज इनकी डेरिवेशन टोटली मैथमेटिकल है. राइट. नाउ यू कैन डू वन थिंग दैट in this case you can take log of THO minus TCO divided by TH in minus TC in is equal to minus UA. You can take MCCPC common. Why MCCPC common? जो मिनिमम माना है उसको मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है. MCCPC राइट, कॉमन बिकॉज दिस इज द मिनिमम, राइट. ये इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं MCCPC बिकॉज दिस इज द मिनिमम. आपको ये पता है कि मैंने बताया था कभी कि MCCPC या M into C को कैपिटल C से भी डिनोट किया जाता है, राइट. So I'll say that if suppose I'm taking the cold fluid heat capacity rate and that is the minimum, I can also write C minimum here, right? तो यहाँ पे एक definition लिख लेना. C minimum is written as okay, C minimum is MCP minimum. Okay, fine. C minimum is the mass flow rate multiplied by CP of the minimum fluid, right? ये ध्यान रखना. तो मुझे मिनिमम कौन सा है? कोल्ड वाला. अभी कोल्ड वाला है, राइट. सो व्हाट इज लेफ्ट इज MCCPC divided by MHCP H plus 1. Now this is called as C star. इसको एक नाम दे रहा हूं क्या? C star. ठीक है, this I'm calling as C star. What is C star? C star is C minimum by C max. तो ये कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिख लो. C star is equal to, ये पूरी तरह मैथमेटिकल है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं. आपको याद रखनी है चीजें कि डेफिनेशंस हमने किसको दी है. What is C minimum? In this case, C minimum is MC into CPC. And C max is MH into CPH, right? That is the situation. Now, I'm calling this UA by, that is one point, right? One more thing. I'm calling this UA by C minimum. What is UA by C minimum? C minimum means जो भी C minimum रहा होगा वो. UA by C minimum, इसको मैंने नाम दिया NTU. Right? So NTU is actually number of transfer units, and in heat transfer it is actually the indication of the area of heat exchanger. आपने मास ट्रांसफर में भी NTU पढ़ा है. मोर एरिया मीन्स मोर हाइट ऑफ दिस डिस्टिलेशन कॉलम. सिमिलरली मोर NTU इन हीट एक्सचेंजर मीन्स मोर एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर. सो NTU इंक्रीजेस मीन्स एरिया इंक्रीजेस. ये एक फंडा समझ लेना. NTU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग दैट U इज कांस्टेंट, एंड ये हमने पहले भी कह लिया था कि हम U को हमेशा कांस्टेंट मानेंगे. सो NTU इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. So NTU is an indication of area of heat exchanger. Okay. So now finally you can write this expression as log of, ये बस एक डेरिवेशन कराऊंगा, बाकी के मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखाऊंगा. दे आर गोइंग टू जस्ट टेक एक्स्ट्रा टाइम एंड देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट देयर. TH in minus TC in is equal to minus NTU को मैं N से डिनोट कर रहा हूं, UA by C minimum is minus N, and then inside the bracket C star plus 1. ये ठीक है. ओके, नाउ व्हाट? आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज THO minus TCO by THI minus TCI is equal to e raised to the power, कुछ आपको ऐसा देखा हुआ एक्सप्रेशन, आपने ऐसा कई जगह पे देखा होगा, 1 plus C star. Why I am doing this derivation? Because I want to relate NTU, because NTU consists of area. आपको एरिया ही फाइंड करना है. NTU and epsilon effectiveness. अब आप इफेक्टिवनेस देखो, दिस वाज द इफेक्टिवनेस व्हिच फ्लूइड इज मिनिमम? कोल्ड फ्लूइड. अब अगर आपको याद हो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर कोल्ड फ्लूइड, देखो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज TH in minus TC in, and for cold fluid if you are writing then it will be MC into CPC, TC out minus TC in, so it should be, तो इस तरह से आपको याद रख लेना है, TC out minus TC in, right? That is the expression. Okay. We want this expression. आप देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है. TH in, TC in, TH in, TC in. TC out is there minus TC in. Okay. What is something which is different here? तो जो चीज different है that is THO. ये THO मुझे परेशान कर रहा है because THO is not present anywhere in the effectiveness. If I want to introduce effectiveness somewhere, then I'll have to eliminate THO. अब आप अगर बैलेंस देखो, the balance over the heat exchanger, the energy balance of the heat exchanger, it is MHCPH TH in minus TH out. बस एक बार डिराइव करेंगे, डोंट वरी. MCCPC TC out minus TC. ठीक है. यहां से आप MHCPH को इधर भेजो. अगेन इट विल बिकम MCCPC by MHCPH, so that becomes C star, and then TH out we want, right? So I can write TH out as TH1 minus. Okay, so I'll write TH out, this is C star,
and this is TH in minus C star into TC out, चलेगा ये minus TC in. ये TH out की एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट. नाउ दैट TH out एक्सप्रेशन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड लेट्स सी शायद ये इफेक्टिवनेस के टर्म्स में हम ला पाए. देखते हैं क्या है. ठीक है, यहाँ देखते हैं. सब्स्टिट्यूट दिस THO हियर. दिस इज THI minus C star into THO minus TCI minus TCO divided by THI minus TCI is equal to the right hand side. I'm not writing the right hand side. Let's match. Effectiveness बन पाया क्या? We have TC out minus TC in we want, right? So TC out minus TC in, I'll have to add and subtract something. So that is TC, okay. I can do that. I can add and subtract plus TC in minus TC in. अब देखो, we'll try कि I make effectiveness somehow. तो TC out है कहीं पर, TC out minus TC in, है ना? So you can do one thing that you can make here THI minus TCI. Okay. So THI minus TCI तो एक तो ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है. एंड देन यू हैव माइनस C star into what? This is THO. C star into just a minute. C star into this is TC2 minus TC1. What is the expression? The expression is C star into THO minus TCI. Where is the expression? Yeah, this is the expression. THI. Just a minute. I think I made some mistake here. THO को substitute किया ना मैंने यहाँ पे. And then it is C star into TCO minus TCI. ये गलती से THI आ गया. TCO minus TCI. Right. So this is TCO minus TCI. Right. Yeah. TCO minus TCI. And right. Minus क्या बच गया? C star into TCO minus TSI, then THI minus TCI minus I think this TCO minus TCI. ठीक है, this divide. देखो न्यूमरेटर मैंने सारी चीजें TCO TCI या THI TCI के फॉर्म में अरेंज कर दी. एंड नाउ दिस इज THI minus TCI. राइट हैंड साइड अभी भी बाकी है, ठीक है. दिस THI minus TCI goes to the every term of the numerator and you can see yourself what we have got. Don't worry, ये एक डेरिवेशन के बाद डायरेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है. एंड कंक्लूजन मैंने आपको पहले बताया, कंक्लूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक ऑफ हीट एक्सचेंजर. ये THI माइनस TCI दैट बिकम्स 1. देखो भाई, दिस बाय दिस 1. दिस इज C स्टार माइनस C स्टार. व्हाट इज दिस? TCO माइनस TCI बाय THI माइनस TCI. दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन. कौन सा एप्सिलॉन? C. ठीक है, ओके. एंड देन एक्चुअली एप्सिलॉन C एप्सिलॉन H आप लिखो चाहे मत लिखो, ये आपको समझ आना चाहिए कि अगर कोल्ड फ्लूइड मिनिमम है तो एप्सिलॉन उसी तरह से डिफाइन होगा. दूसरा एप्सिलॉन डिफाइन ही नहीं होता तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है. C स्टार एप्सिलॉन C माइनस TCO माइनस TCI बाय THI माइनस TCI. तो अगेन एप्सिलॉन C इज इक्वल टू व्हाट वाज द राइट हैंड साइड? e रेज़ टू द पावर माइनस n इनटू 1 प्लस C स्टार. ठीक है. नाउ जस्ट टेक थिंग्स कॉमन. 1 माइनस एप्सिलॉन C एंड देन 1 प्लस C स्टार. ठीक है क्या? 1 माइनस एप्सिलॉन C माइनस C स्टार is equal to e raised to the power minus n into 1 plus C star. अब भाई देखिए आपको क्या निकालना था? इफेक्टिवनेस निकालना था, आई थिंक. सो दिस विल बी 1 minus e raised to the power minus n into 1 plus C star and that divided by 1 plus C star. That is the value of effectiveness. राइट. अब ये जो रिलेशन मैंने आपको दिया है, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड व्हेन दिस कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम. अब आप बोलोगे सर इसका मैं क्या करूंगा? यू नो हाउ टू कैलकुलेट एप्सिलॉन, राइट? वंस यू नो एप्सिलॉन, राइट, और सपोज यू हैव द वैल्यू ऑफ एरिया, इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट NTU. वंस यू नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन यू कैन इक्वेट दिस. C स्टार वगैरह की वैल्यू पता है आपको, वहां से NTU मिलेगा. एक बार NTU मिलेगा देन इक्वेट NTU टू UA बाय C मिनिमम, वहां से एरिया मिल जाएगा. ठीक है, ओके. दैट इज वन एक्सप्रेशन. नाउ सपोज if the heat exchanger is parallel flow but the configuration is
सॉरी बट द मिनिमम फ्लूइड इज द हॉट फ्लूइड, इन दैट केस ये फॉर्मूला सेम रहेगा नहीं रहेगा? द आंसर इज फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अब ये आपका काम है, आप चाहो तो उसको डिराइव करके देख लेना। क्या करना है, बस आपको मिनिमम फ्लूइड को चेंज कर देना है, डू द डेरिवेशन, यू विल रीच द सेम रिजल्ट। अब यहां पे कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं, लिखते चलो कंक्लूजन। ओके, फॉर पैरेलल फ्लो if the minimum fluid is hot fluid, if the minimum fluid is hot fluid, minimum fluid मतलब समझ रहे हो, heat capacity rate is less, hot fluid, minimum fluid is hot fluid, then minimum fluid is hot fluid, then what we can say in this case, same expression, same above expression, then same above expression can be used, same above expression can be used, ठीक है? और सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बट यू हैव टू बी केयरफुल। देखो एक्सप्रेशन सेम रहेगा बट एन की वैल्यू हो जाएगी यू ए बाई सी मिनिमम। अब सी मिनिमम यहां कौन होगा, हॉट वाला, एंड सिमिलरली सी स्टार भी बदल जाएगा, व्हाट विल बी सी स्टार। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हम इतना पढ़ लेते लेकिन ये ध्यान नहीं रहता, सी स्टार विल बी एम एच सी पी एच, क्योंकि सी मिनिमम में क्या रखना है, यहाँ पे मिनिमम वाला ऊपर रखना है, सी मिन बाई सी मैक्स, और एम सी सी पी सी। सी स्टार की वैल्यू बदल जाएगी बट ये फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलरली NTU will be UA by MHCPH, ये दो चीजें बदल के बाकी फॉर्मूला सेम हम यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर काउंटर फ्लो कर दिया तो भी क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? नहीं। नाउ अगेन फॉर काउंटर फ्लो आई कैन डू ऑल दीज टेम्परेचर कैलकुलेशंस, टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सारी चीजें कर सकते हो, पर उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस। ये मैनिपुलेशंस अगर आप कर पा रहे हैं, यू कैन इजिली प्रूफ, राइट? नाउ सपोज ये मैंने आपको बता दिया, देखो सेम फॉर्मूला, सेम टू फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल इन काउंटर फ्लो क्रॉस को करंट हीट एक्सचेंजेस, चाहे हॉट फ्लूइड मिनिमम हो चाहे कोल्ड फ्लूइड मिनिमम हो, बस ये दोनों चीजें बदल देनी है। नाउ सपोज इफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज देयर, इन दैट केस ऑल्सो चाहे कोई भी फ्लूइड मिनिमम हो, फॉर्मूला आपके पास एक ही है, द सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। सपोज केस 2, राइट डाउन, केस 2 is counter flow heat exchanger, counter flow heat exchanger। इनके अभी एक दो स्पेशल केसेस है, उन स्पेशल केसेस पे पहले क्वेश्चन आए हुए। इफेक्टिवनेस पे ज्यादा क्वेश्चन केमिकल में आपको नहीं मिलेंगे, मैकेनिकल में आपको क्वेश्चन इफेक्टिवनेस से मिलेंगे, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान देना है टॉपिक पर। हालांकि जितने क्वेश्चंस आपके पास आते हैं यहाँ पे वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है? जिस तरह के क्वेश्चन आते हो सारे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? अगेन द सेम थिंग, इफ सपोज इफ द कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम, हॉट फ्लूइड इज द मिनिमम, बस आपको ये देखना है कि मिनिमम कौन है, उस हिसाब से करेक्ट एप्सिलॉन। देखो गलती हो जाती है कई बार एप्सिलॉन डिफाइन करने में, आप हॉट फ्लूइड को मिनिमम बोलते हो लेकिन फिर आप कहते हो कि कोल्ड फ्लूइड के हिसाब से डेफिनेशन लिख देते हो, देन इट बिकम्स इनकरेक्ट। करेक्ट एप्सिलॉन डिफाइन करना है, जो फ्लूइड मिनिमम है उसी के हिसाब से एप्सिलॉन डिफाइन करना है। नाउ आई एम गिविंग यू द रिलेशन दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को इस तरह से लिख दे रहा हूं सो दैट ब्रैकेट में अलग से लिख सकूं, माइनस n इंटू 1 माइनस सी स्टार। अब सी स्टार क्या है, सी स्टार इज सी मिनिमम बाई सी मैक्स। कौन मिनिमम है आप देख लेना, जो भी मिनिमम होगा उस हिसाब से। n क्या है, यू ए बाई सी मिनिमम। कौन मिनिमम है, जो भी मिनिमम होगा, कोल्ड फ्लूइड या हॉट फ्लूइड में से जो भी मिनिमम होगा, दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्टार इंटू ई एक्स पी माइनस n 1 माइनस सी स्टार। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी देके याद रखेंगे, ठीक है? मैकेनिकल में ये फॉर्मूला आ सकता है। अब देखो होता क्या है कि फॉर्मूला तो आपने दो तरह के हीट एक्सचेंजर के लिए बना लिया, और भी कई तरह के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, सभी के लिए फॉर्मूला होता है, सब आप याद नहीं रख सकते। देन देयर आर ग्राफ्स आल्सो। फिर आप करते क्या, एक्चुअली एप्सिलॉन कैलकुलेट करते हो, ग्राफ में जाके रीड करते हो, वहां से एनटीयू कैलकुलेट करते हो, देन यू कैलकुलेट द एरिया। सो ग्राफ दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इन दैट केस ग्राफ विल बी प्रोवाइडेड टू। अब ग्राफ में रीड करना है, दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज एनटीयू, एनटीयू इज इक्वल टू यूए बाय सी मिनिमम, एंड देन आई हैव द एरिया, राइट? सो 1 माइनस सी स्टार एक्सपी। Again, above formula is valid in both the cases. Above formula is valid. इसको यार प्रूफ नहीं कर रहा, ठीक है? मैं जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने एक प्रूफ कर दिया। अब आपको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके प्रूफ के पीछे। Above formula is valid in both the cases. Both cases, either cold fluid is minimum, either कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम और हॉट फ्लूइड इज मिनिमम, बट उसके हिसाब से आपको सी स्टार एंड एन को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है। कोल्ड फ्लूइड इज मिनिमम और
hot fluid is minimum. Okay, now there comes a special case, 2-3 special cases. ये special cases पे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, क्या है? Suppose I have the parallel flow. First of all, parallel flow. Suppose for parallel flow, if C star tends to 0. अगर C star 0, what is C star? C star is C minimum by C maximum, right? C star 0 कब हो सकता है? Can you give me examples? In case of evaporators and condensers, आपको बताया था in case of evaporators and condenser, MHCpH is much less than MCCpC and MCCpC is much less than MHCpH. तो जो भी लेस होगा वो काफी लेस होगा, इसलिए C minimum की वैल्यू very small होगी as compared to C maximum and therefore C star will tend to 0. Means in evaporators and condensers. In evaporators and condensers. So अगर C star 0 होगा in evaporators and condenser, put the value of 0. This is 1. This becomes 1 minus e raised to the power NTU. You have this formula, epsilon is equal to 1 minus e raised to the power negative of NTU. ठीक है, N लिख लो या NTU लिख लो, it's your choice. This is valid for evaporators and condenser. Now you will ask कि सर अगर evaporator को को करंट या काउंटर करंट, को काउंटर सब में वैलिड है, मैं अभी काउंटर का अलग से लिखवा दूंगा. ऑल्सो सपोज वन मोर लिमिटिंग केस दैट इफ C स्टार टेंड्स टू 1, अगर C स्टार 1 पे गया, ठीक है, C स्टार 1 मींस MHCpH इज इक्वल टू MCCpC. इन दैट केस देखो मिनिमम तो कोई नहीं होगा, है ना, तो आप UA by C मिनिमम में कुछ भी यूज कर लो. इफ C स्टार इज टेंडिंग टू 1 देन दिस बिकम्स इक्वल टू, इट्स वेरी सिंपल, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1 minus e raised to the power minus 2n and that divided by 2. चलेगा क्या, है ना, 2n means NTU. Now suppose if I talk about counter flow, let's take C star tending to 0. C star को 0 पहुंचाते हैं. If C star tends to 0, this entire expression tends to 0 and you'll see that you are obtaining all again the same expression. So मतलब for evaporators and condensers, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि for evaporators and condenser even LMTD is not affected by the type of flow pattern. Evaporators and condensers, ठीक है, LMTD is not affected by the type of flow. So again आप C star को 0 put करो, you are getting epsilon is equal to 1 minus e raised to the power minus NTU. Correct? One more thing, C star is tending to 1. C star is tending to 1. अब आप 1 put करोगे, you are again finding that if C star is 1, this is 1 minus 1, that is 0. E raised to the power 0 is 1, so 1 minus 1 by 1 minus 1. So 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, तो C star को 1 पुट करके एक्चुअली यहाँ पे लिमिट सॉल्व करनी होती है ना. इन दैट केस यू आर गोइंग टू सॉल्व द लिमिट. आप यहाँ लिमिट सॉल्व करके देखना कि if C star is equal to 1, in that case if you solve this limit, you have let's say for counter current, in this case we have this result that epsilon is equal to NTU by 1 plus NTU. ये देखो ये छोटे रिजल्ट्स हैं, ये याद रखने में आसान है, तो इट इज मोर प्रोबेबल दैट समवन इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, नॉट बेस्ड ऑन दिस. बट हो सकता है कि कल को आपके पास लिमिट से क्वेश्चन आ जाए, ये सिंबल्स बदल के ABC कर दे और बोले कि इसकी लिमिट क्या होती है. इसलिए कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी डेरिवेशन आपको काम करनी पड़ती है. आप लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ भी रहे हैं आई गेस, तो कैलकुलस में है आपके पास लिमिट कंटिन्यूटी. आप एक काम कर सकते हैं कि इस पे C स्टार टेंडिंग टू 1 की लिमिट सॉल्व करके देखो, ठीक है. अगर सॉल्व नहीं होती है, डाउट पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करें. इट्स प्योरली मैथमेटिक्स, राइट. दिस इज ऑल अबाउट NTU एंड इफेक्टिवनेस मेथड. ओके, अब होगा क्या इसमें, आप बोलोगे सर एप्सिलॉन दिया होगा, इफेक्टिवनेस दी होगी या NTU दिया होगा. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी दे सकता है. दे कैन गिव यू NTU एंड आस्क इफेक्टिवनेस. Once you know the effectiveness, then you can apply the formula of effectiveness and calculate the terminal temperature. कई बार बच्चे क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर when to use effectiveness method and when to use this LMTD method. Actually the answer is कि ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता because each and every question can be solved by effectiveness as well as LMTD method. Only one type of question is there. वो भी LMTD से solve हो जाएगा. The only thing is heat and try procedure is involved. But again I'm just clarifying, I'm just giving you a statement so that this doubt is also cleared. When terminal temperatures are known, means terminal temperatures are completely known. Suppose there are 4 temperatures. Out of 4 temperatures, let's say 3 temperatures are known. Of course 4th you can calculate by applying the energy balance. In that case LMTD method is more suitable. But if suppose terminal temperatures are not known, or out of 4 suppose 1-2 temperatures are only known,
less values of temperatures are known. In that case, NTU method may become suitable, because you see in the definition of effectiveness, there are only 3 temperatures: TH in, TC in, TC out, TC in. So there are only 3 temperatures involved. While in the definition of LMTD, you need all the 4 temperatures. So if, just suppose if you have only 2 temperatures, in that case this NTU method is more suitable. तो थोड़ा क्वेश्चंस लेंगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा, बट फिर भी ये आंसर मैंने आपको सिर्फ इसलिए बता दिया कि कल को आप कहीं डिस्कस करो तो आपको पता हो कि हाँ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लोगों को बताया जाता है. बट अगेन आई एम सेइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय LMTD मेथड आल्सो, राइट. NTU मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, LMTD मेथड से भी सॉल्व हो सकता है. मैंने आपको NTU का कॉन्सेप्ट दिया कि NTU है क्या, राइट. इफेक्टिवनेस है क्या, व्हाई एंड ऑन व्हाट बेसिस वी हैव डिफाइंड इफेक्टिवनेस. नाउ एक्चुअली इफेक्टिवनेस एंड NTU मेथड, अगर आप इसके डिटेल में जाओ, इट इज अ ग्राफिकल प्रोसीजर. तो आपको रीड करना होता है ग्राफ से, फिर NTU को UA/C मिनिमम से इक्वेट करके एरिया पता करते हो, और अगर NTU पता लग जाए तो इफेक्टिवनेस निकाल के बाय पुटिंग इन एनी वन ऑफ दीज एक्सप्रेशन. एंड देयर आर मेनी अदर एक्सप्रेशंस आल्सो फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीपास के लिए भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, बट वो सब याद नहीं करने. इवन आपसे ये पूछ ले इसके भी चांसेस बहुत कम है, बट दीज आर सम सिंप्लीफाइड फाइनल एक्सप्रेशंस, ये पूछ सकते हैं.